Hello my student, welcome GMI tutorial. Myself Gaurav Misra, and here I am come with new topic which name is representation of real number in real line. What is the name of topic? Representation of real number such as root 2, root 3, root 5 on the real line. How can we represent any irrational number, root 2, root 3, root 5, root 7 and so on, root 6 and so on the real line? In last lecture, I was discussed some problem related to your syllabus, which is very important. Okay, let's see how can we represent root 2 and root 3. Here are some figure in which you are seeing on the screen. How can represent root 2? How can represent root 2? So first of all, we taking x dash as a line. First of all, we consider x dash o means origin and x dash. Taking o is the origin. Okay. Now we consider OA is 1 unit. We consider first of all OA is 1 unit. Okay. And similarly, we taking AB, which is perpendicular, whose length is also 1 unit. Okay. After that, 1 unit, we join with OB. We join OB. This OB, what is the meaning of OB by Pythagorean? Pythagorean says that the perpendicular square and base square will gives perpendicular square and base square gives under root what? Hypotenuse ka square. It will be root 2. Okay, if we take in one unit on perpendicular and base together. Now we can say that OB is root 2. OB is the length, OB is root 2. Okay. Now we have to represent root 2 on the real line, which consider real line x dash o x. So now we taking by using compass and putting the knob at O and taking the distance OB, and using compass we draw the figure at P. We draw the figure at P. If we discuss separately, means we first of all draw x dash o x. Okay, taking 1 unit OA, this is OA 1 unit, and similarly OB 1 unit, which is perpendicular, and we join OB. Okay, and using point of the knob compass putting on O and taking the arc length OB, draw an RHS right hand side and taking on that place, which gives P, and this point P gives the value of what? Root 2. This point P gives value of root 2, and also the OB represent root 2. Here the some knowledge which given procedure you can see, which discuss in this and that lecture, which are discussing in that lecture. Okay, first of all, we taking s dash o x horizontal line, x axis and o is origin. O is 1 unit, AB perpendicular OA and AB is 1 unit. Then we get root 2 unit. And similarly, the point P represent the root 2 and OP represent the root 2 on real line. Okay. I hope कि you are understanding very well. देखिए, मैं फिर से इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको रूट 2 रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एक लाइन, रियल लाइन कंसीडर करना होगा एक्स ओ एक्स. क्लियर है? जिसमें हम ओ ए एक 1 यूनिट लेंथ ले रहे हैं, फिर ए के परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया बी, वो भी 1 यूनिट लिया, और फिर ओ बी को ज्वाइन किया. जब ओ बी को ज्वाइन कर लेंगे तो हम जो नॉब होगा कंपास का, हम यहाँ रख करके यही लेंथ लेकर के कंपास को रोटेट कराएंगे, और जब रोटेट कराएंगे तो वो यहीं कहीं कट करेगा, जिसका नाम हो जाएगा
P, जब वो रियल एक्सिस को कट करेगा P को, ये जो OP डिस्टेंस होगा और OA डिस्टेंस होगा, मीन्स OP और OB यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, √2। क्लियर है। अब इसी तरह अगर हम आगे बढ़े अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के कि अगर हमें √3 रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए आपने अभी भी प्रूफ किया OB कितना है, OB है √2, कितना है, √2। इसी तरह अगर हम B के इस OB इस हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर एक ड्रा करें तो ये सपोज करो क्या हो गया, BC। OB 1 यूनिट हम ड्रा करें, फिर OC को ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करने के बाद जब हम यही O को पुट करके कंपास को, फिर OC आर्क लेंथ लेते हुए अगर हम ये आगे बढ़े तो ये कहीं Q पे कट करेगा। यही जो OQ होगा, OQ और OQ एंड OC विल रिप्रेजेंट √3। क्लियर है। इट इज़ वेरी इजी, मीन्स if you taking any line x dash over x and taking OA 1 unit distance and OB is 1 unit distance, similarly we get by Pythagorean OB is √2, then taking the using compass OB we draw on a real line, we get P, and this position OP and OP and OB is represent √2. Okay, I think you are understanding very well. अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें √5 दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे। देखिए अभी भी आपने ये प्रूफ किया कि ये जो क्वांटिटी कितनी आई थी, ये √2 आपने लिया, ये 1 लिया, तो ये आया √5। ये कितना आ जाएगा, √5। देखिए एक मिनट, सॉरी, ये आपने लिया कितना, √2, और ये लिया आपने 1, तो ये कितना मिला आपको, √3 मिला। क्लियर है। इसी तरह जब ये OC को अगर हम क्या मान लें, बेस मान लें, और इसके परपेंडिकुलर OD 1 यूनिट ड्रा करेंगे, हम एक ही फिगर में सारी बता रहे हैं आपको, एक ही फिगर में आप सारा बता सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, कोई काट नहीं सकता। तो जब हम OC के परपेंडिकुलर OD ड्रा करेंगे, कैसे ड्रा करना है, सिंपल परपेंडिकुलर आप कैसे बनाते हैं, यूजिंग प्रोटेक्टर आप डायरेक्ट बनाइए, लेंथ CD 1 यूनिट ले लीजिए, OC आपने निकाला ही है √3। तो जब ये 1 और हम √3 जान रहे हैं तो ये कितना होगा, अब आप सीधे बताइए पाइथागोरियन थ्योरम से, परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। और जब ये √5 हो गया तो आप कह सकते हैं कि जब यही हम आर्क लेंथ ले करके इसी आर्क लेंथ पर, देखिए ध्यान से, पहले अभी आपने ये क्या बताया कि ये जो क्वांटिटी है कितनी है, ये √2 √3 है, OC कितना है, √3 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा आप बताइए, बोलिए, ये कितना होगा, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया, 3 + 1 4 हो गया। अब जब ये 4 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। जब ये 2 हो गया तो इसके परपेंडिकुलर हमने 1 यूनिट ड्रा किया, तो ये कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो गया, √5। अब यही आर्क लेंथ लेकर के जब हम एक सर्कल की नुमा ड्रा करेंगे, आर्क ड्रा करेंगे, तो वो कहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस पर रियल लाइन पर कट करेगा, वही पोजीशन हमारा क्या होगा, R होगा। क्लियर है, बहुत इजी है। आप मतलब जैसे निकालते जाइए, आपको 1 1 मिला तो √2 मिला, √2 1 लिए तो √3 मिला, फिर √3 1 लिए तो √4 मिला, जिसकी वैल्यू 2 होती है, फिर 1 यूनिट लिए तो कितना मिल गया, √5। इस तरह आप कोई भी नंबर, रियल नंबर पर कोई भी इस तरह का जो नंबर है रूट टाइप का इरेशनल नंबर रियल लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ और क्वेश्चन लिया है जो आप बहुत आसानी से देखिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि √5 हम सेपरेटली निकालें, हम √5 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं √5 को निकालने का क्या प्रोसीजर है। √5 निकालने का प्रोसीजर यही है कि हम √5 के लिए क्या ले सकते हैं पाइथागोरियन में, अभी आपने देखा 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यही ना, √5 मीन्स अगर हम चाहें तो डायरेक्ट √5 ड्रा कर सकते हैं। कैसे, ओरिजिन ले लें, x डैश x, OA को हमने 2 यूनिट ड्रा किया, परपेंडिकुलर OB को 1 यूनिट और OB को ज्वाइन कर दिया। अब 2 और 1 कितना हो जाएगा, 5। आप जान रहे हैं, अब यही आर्क लेंथ लेकर के आपको यूजिंग कंपास
आप क्या करेंगे, यहाँ पर मिला देंगे। ये आपका पॉइंट P क्या रिप्रेजेंट करेगा, √5। अब आपको √5 मालूम है, इसके परपेंडिकुलर 1 यूनिट ड्रा कर दीजिए। आपको जब √5 मालूम हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर 1 यूनिट ड्रा कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, √6 मिल जाएगा। सिमिलरली √7 मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक तरह कह सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इसे लगाइए। मैंने √5 को बता दिया, उसी तरह √6 को परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिएगा उसके हाइपोटेनस पर, और फिगर आप बनाते जाइए। ये था आज का जो टॉपिक था हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये कह सकते हैं कि √2, √3, √5 या √6, √7 ऑन दी रियल लाइन। ओके, आई होप कि आपका आज वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।